Previous class, I have discussed about the deterministic finite automata. You have seen finite automata is used for pattern recognition, string matching, and LEX designing. LEX is a kind of a program that is used for compiler in the phase of lexical analysis. That means whenever we recognize token present in the program, we have to use the LEX program, right? So finite automata is used in that case, right? So we have already said about what is the terminology used in this deterministic finite automata. Any deterministic finite automata is represented by 5 tuples. These tuples are Q, sigma, del, Q naught and F, where Q is finite set of state, sigma is finite set of alphabet, del is a transition function which map Q cross sigma to Q. What? Q cross sigma to Q. That means when we applying a input symbol over any state Q, there will be one transition out of that state. Clear this point? Once again, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि जब भी कभी हम कोई भी इनपुट किसी भी स्टेट पर अप्लाई करेंगे तो उससे एक ट्रांजिशन आएगा, वो किसी ना किसी एक स्टेट को मैप करेगा, ध्यान रखिएगा, right? In that Q0 will be your initial state where the automata start to read the symbol of the string, and F is the set of final state, and this is a subset of Q, that is set of states. So whenever your machine started from the initial state and terminated at the final state F, then the string is accepted, otherwise string is rejected by the automata, right? Last time we have discussed one of the example, that is even number of zeros and even number of ones, and I told you about some of the representation of DFA is done using the 3 things. One is transition diagram, another one case is transition table, another one is transition function. Transition diagram is a kind of a pictorial representation where we represent the machine in the form of diagram, where in the diagram or graph we have set of vertices we call state, and the transition that is used to represent the function. While in the case of transition table, that table just represent the functions of the transition, and transition function is represented in the form of Q, del such that Q cross sigma to Q, right? So one of the example we have seen here, this is a kind of a transition diagram where each state is represented by circle. Each state is represented by circle, right? Initial state is denoted by the inward arrow. See here, Q0 is your initial state, and here one of the arrow is there, that is that point to this state, so this Q0 will be your initial state. Final state is represented by the double circle. So here you have seen here Q0 and Q1 both are the final state because this is represented as a double circle. See here Q0 and Q1 both are the final state, while the transition from one state to another state is represented by the arrow. So here there is a one transition from Q0 to Q0 by 0. That means when we are applying 0 over Q0, we are moving to Q0. So see here, the same case is represented using the table as Q0 of 0. It is Q0. देखिए Q0 पे 0 जब अप्लाई कर रहे हैं कहां जा रहे हैं Q0 पे. So Q0 of 0 goes to Q0. Similarly, Q0 of 1 goes to Q1. So Q0 of 1 goes to Q1. That is okay. Similarly, Q1 of 1 goes to Q1. So here Q1 of 1 goes to Q1. That's okay. Here
Q1 of 0 is represented to Q2. So Q1 of 0, it goes to Q2. So this is again the transition table. In that Q1 of 0, the next state will be Q2. Similarly, Q2 of 0 and 1. See, if there are more than one input, so we have to separate here by using the comma. So Q2 of 0, it goes to Q2. Similarly, Q2 of 1, it goes to Q2. So Q2 of 0, it goes to Q2. Q2 of 1, it goes to Q2. So see here we are representing the machine as alphabet. We have only applied 0 and 1. So the alphabet become 0 and 1. The state, we have three states, Q0, Q1 and Q2. So states are Q0, Q1 and Q2. Initial state is represented by an inward arrow. So see here, initial state is only Q0. While accepting state or final state, we have two final state. So Q0 and Q1 are the final state. So this is a representation of one of the finite automata. Now, one thing here we want to tell you, what kind of language or string accepted by such finite automata, right? The question is, what kind of string accepted by such finite automata, right? So we have to see here. Let, for example, again we have draw this diagram. आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग बोलते रहिए, नहीं आया आप पूछ लीजिए. देखिए, दिस इज अ Q0 स्टेट, दिस इज अ Q1 स्टेट, दिस इज अ Q2 स्टेट. Q, देखिए Q0 we have taken this as a inward arrow. So see, this state now become as a initial state. Now, if we design any state as a double circle, so if we taken this is a double circle, this is also a double circle, that means these two states are the final state. Now, applying here, we are applying 0, it goes to this. So applying 0, so this is a 0. Applying 1, we are going to this state. So this is 1. Okay? Applying 1, we have to go with this state. This is a 1. Applying 0, we are going to this state 0. Now applying this is a case of 0 and 1. This is a little bit typical example we have taken here, not a simple one, but you have to recognize what kind of language it is accepted. What kind of language? So as earlier we have seen in the previous class, how we can define any language. Any language L is defined as set of words, such that W belongs to sigma star. Sigma means, sigma is the input symbol. तो यहां पर हमारे पास सिग्मा क्या है बताइए? इनपुट सिंबल क्या है? इनपुट सिंबल क्या है? 0 and 1. So that means W represent what? W क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बताइए? 0 and 1. ओनली 0 and 1. स्टार है यहाँ पर, देखिए दिस इज ए स्टार सिंबल. इसका मतलब होता है दिस इज ए क्लीन क्लोजर. क्लीन क्लोजर का मतलब होता है यहाँ पर द सेट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 and 1. क्या होगा? ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1. ऑल द possible combination of 0 and 1. Clear this point? Yes sir. तो all the possible combination of 0 1 का मतलब है कि 0 1 से बनने वाली सारी की सारी स्ट्रिंग्स आपकी. ठीक है, बात क्लियर हो रही है सभी को? 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग. नाउ अब बात आती है यानी कि W है क्या? L क्या है? L is the language that is set of string. तो कौन कौन सी वो स्ट्रिंग्स हैं जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है? एक्सेप्टेंस के केस में हमने आपको बताया था पिछले टर्म पे, इफ M is any DFA or finite automata that represent Q sigma del Q0F, then the language accepted by any machine M is the set of
all string W such that del of Q0 W equivalent to QF, del of Q0 W equivalent to QF, where QF belongs to final state, कहां belong करना चाहिए, final state, and W belongs to sigma star. ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फॉर दिस एनी फाइनाइट ऑटोमेटा कि व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनी मशीन और एनी DFA. It is represented using L of M equivalent to set of words W such that del of Q0 W equivalent to QF. What is the meaning in that? हमारा मतलब है कि जो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा का अगर कॉन्फ़िगरेशन हमने पिछले टर्न पे बताया था कि एक आपका क्या होता है, टेप होता है, टेप के ऊपर स्ट्रिंग्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, ये स्ट्रिंग इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कि हर सिंबल एक एक सेल में आता है, जो सेल ये बना है, ये टेप जो है एक फाइनाइट कंट्रोल के साथ अटैच होता है, इसको कहते हैं फाइनाइट कंट्रोल. क्या कहते हैं, फाइनाइट कंट्रोल, राइट. और ये क्या स्टार्टिंग सिंबल से चलता हुआ इस तरह से मूव करता है टेप का हेड, ठीक है, इसको कहते हैं रीड राइट हेड. क्या कहते हैं, रीड राइट हेड, क्योंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है इसलिए केवल ये रीडिंग हेड होता है, ठीक. तो जो भी स्ट्रिंग हमारी है इन पे लिखी जाती है, ठीक है. अब जैसे अब बात आती है कि हमने क्या कहा था कि स्ट्रिंग जब हम रीड कर रहे हैं तो आफ्टर रीडिंग एंटायर स्ट्रिंग इफ इट रीचेस द फाइनल स्टेट देन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. क्या मतलब है कि इनिशियल स्टेट से चल के वट एवर द स्ट्रिंग 01001 की कोई भी स्ट्रिंग है, अगर इसको स्कैन करता है 1 by 1, ठीक है, और अगर ये किसी फाइनल स्टेट में पहुंचता है तो जो W है, ये लेट W इज दिस फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन W बिलोंग्स टू L of M. ध्यान रखिएगा, क्या मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग अगर W है और W को इनिशियल स्टेट पे जब हम अप्लाई करते हैं तो 1 by 1 ये स्कैन करते हुए अगर ये QF पे टर्मिनेट होता है, QF क्या है, फाइनल स्टेट, तो QF पे टर्मिनेट होता है तो जो स्ट्रिंग W है वो L of M की एक स्ट्रिंग होगी. क्लियर है ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर. अगर नहीं है पूछ लीजिए कि क्या एक बार फिर से समझा दूंगा मैं. नाउ चलिए, अब पॉइंट आता है कि हमारी ये स्ट्रिंग कौन कौन सी ले रहा है, राइट. ये ऑटोमेटा हमारी कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है. अब बताइए यहां से इनिशियल स्टेट क्या है, यहां पर Q नॉट, राइट. इनिशियल स्टेट इज Q नॉट. कोई ऐसा भी कर सकता है कि कोई और नॉर्मल कल्चर ले सकता है, ठीक है, Q नॉट की जगह Q1 ले लिया तो Q1 विल बी योर इनिशियल स्टेट, दैट इज डिफरेंट इशू, राइट. नाउ इनिशियल स्टेट इज Q नॉट, फाइनल स्टेट आपकी क्या क्या है, Q नॉट एंड Q1. Q नॉट एंड Q1, ठीक है. बात सबको समझ में आ रहा है? मेरा कहने का क्या मतलब था, यहां पे स्ट्रिंग कौन कौन सी एक्सेप्ट करेंगी, स्ट्रिंग कौन कौन सी एक्सेप्ट करेंगी, Q नॉट एंड Q1. नहीं, स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करेंगी जो इनिशियल स्टेट से चलकर फाइनल स्टेट पर टर्मिनेट होती हैं. क्लियर दिस पॉइंट? यही तो मतलब है कि जब आपने देखिए जब आपने W को Q नॉट पे अप्लाई किया तो ये कहां जा रहा है, QF पे. अगर QF पे टर्मिनेट हो रहा है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी, तो ये इस सेट की एक स्ट्रिंग होगी. क्लियर हो रही बात? यानी कि एक तरीके से Q0 से चलकर कोई भी स्ट्रिंग आइदर Q नॉट पे टर्मिनेट हो और Q1 पे टर्मिनेट, सेट का मतलब और ही होता है, ठीक है, Q नॉट पे टर्मिनेट हो या Q1 पे टर्मिनेट हो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी. बात समझ में आ रही है? यस सर. क्लियर है? यस. तो बताइए
मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होती है? मैंने पिछली एक क्लास में बताया था मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। कोई बताएगा? मैत्री, मैत्री, आर यू देयर? देखिए मैं क्लास में इंटरेक्टिव क्लास चाहता हूं, ऐसे नहीं कि आइडियल बैठे रहो। मैं हर किसी का नाम लूंगा जो आपकी क्लास का है। देखिए टाइम मैं भी नहीं चाहता हूं कि लो, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताएंगे तो बेटर रहेगा। बताइए, एनीवन? मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी? सर जीरो लेंथ स्ट्रिंग। हाँ, जीरो लेंथ स्ट्रिंग क्या कौन सी होती है? सर ई। ई नहीं, एप्सिलॉन। यस लास्ट टाइम सर। नहीं बताया था क्या है इसको कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, राइट? व्हाट इज इट? इज ए एप्सिलॉन। क्लियर? सो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन। वन लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी? What will be your one length string? 0 1 Either 0 or 1. Two length string? 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1। क्लियर? ऐसे ही सारी 3 लेंथ 4 लेंथ अप टू इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग। अब W हमारा क्या है? सिग्मा हमारा क्या है? सिग्मा हमारा क्या है? 0 एंड 1। सो इनसे बनने वाले सारी स्ट्रिंग, तो हमारी अगर हम सिग्मा स्टार की बात कर रहे हैं वो सारी स्ट्रिंग। बट हमें ये चेक करना कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सी को नहीं कर रहा है। तो चेक करिए, क्या इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है? चलिए एक पॉइंट और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। Before going to this, you just note down one thing, properties of transition function. Properties of transition function. First thing, del of q of epsilon equivalent to q, where q belongs to capital Q. What is the meaning in that? See here, कि without applying any input over the state, we cannot move from one state to another state. Clear this point? Is it clear to all? yes sir क्या मतलब है कि जब तक कि हम कोई इनपुट सिंबल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मूव या ट्रांजिट नहीं कर पाएंगे। Clear? One of the property. That's why we say here del of q of epsilon equivalent to q, where q belongs to capital Q. Clear? Second, del of q of aw equivalent to del of q of a comma w. What is the meaning in that here? Here a is what? A is any input symbol and w belongs to sigma star.
W belongs to sigma star. That means कोई भी स्ट्रिंग है, अगर हम लिख रहे हैं 1 0 1 0 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जैसे Q0, तो we can write here del of Q0 of 0 comma 1 0 1 0. देखिए ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग आपकी एक स्ट्रिंग बन गई, ये आपका एक वन ऑफ द सिंबल हो गया A, so we call it is A and rest of the string is now become W. So del of Q0 of 0 1 0 1 0, right? We can write this and you can use this and you can write Q0 of 0. यहां पर क्या हो रहा है, Q0 से 0 कहां जा रहे हैं, that is Q0. So this now become a Q0 in that, like this. So these are two property in that, right? So tell me, what is the language accepted by this finite automata? So we are defining here कि जो भी स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से चलकर फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट करेगी वो सारी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होंगी. क्लियर? ये बात समझ में आ रही सभी को? अब बताइए, एप्सिलॉन इज योर मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग. तो हम देखते हैं Q0 पर जब हम एप्सिलॉन को अप्लाई करें तो क्या आएगा, Q0. Q0. क्या Q0 फाइनल स्टेट है? No, sir. Yes. क्यों भैया, देखो ना यहां पर हमने अभी लिखी है कि Q0 एंड Q1 बोथ आर द फाइनल स्टेट. Q0 इनिशियल स्टेट भी है, Q0 फाइनल स्टेट भी है. तो क्या ये Q0 फाइनल स्टेट है? Yes, Yes, sir. sir. और अभी देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनी मशीन. ध्यान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं पर अगर आपने इस 2-3 लेक्चर की कहानी है इस पूरे सब्जेक्ट की, यहां समझ लिए, सब कुछ समझ लिया कि L of M is equivalent to what? L of M is equivalent to set of string W such that Q0 of W equivalent to QF. यानी Q0 पे जो भी स्ट्रिंग आपने अप्लाई की है अगर वो फाइनल स्टेट को टर्मिनेट करती है तो वो स्ट्रिंग उस मशीन द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो बताइए यहां पर ये एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन को Q0 पे अप्लाई किया है तो कहां जा रहे हैं? Q0. Q0 क्या फाइनल स्टेट है? Yes, sir. Yes, that means epsilon is one of the string accepted by this finite automata. Clear? Yes, sir. Now check next length string, that is 0 and 1. Now check for this string 0 के लिए. तो फिर से देखिए, डेल ऑफ, ये दिख रहा है भैया, डेल ऑफ Q0 ऑफ 0 क्या आएगा? Q0. डेल ऑफ Q0 ऑफ 0 क्या आ रहा है? Q0. देखिए Q0 से यहां पे देखिए ये वाली बात, Q0 से जब आपने यहां पर देखिए इसको Q0 से जब 0 पे अप्लाई किया तो Q0 पे ही आ रहा है. तो यहां पे ये ट्रांजिशन फंक्शन Q0 ऑफ 0 इक्वल टू Q0. अब बताइए क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी? Yes, sir. ये देखिए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी क्योंकि इनिशियल स्टेट है, इनिशियल पे जब 0 अप्लाई किया तो Q0 एक फाइनल स्टेट है, यानी कि 0 इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय दिस. क्लियर हो रही है? अच्छा बताइए 1. नाउ चेक फॉर 1. Q1. डेल ऑफ क्या लिखेंगे? डेल ऑफ Q0 ऑफ 1 कहां आएंगे? Q1. Q1. Q1 क्या फाइनल स्टेट है? Yes, sir. तो यानी कि 0 भी एक्सेप्ट होगी. कौन सी स्ट्रिंग? 1 भी एक्सेप्ट होगी.
क्लियर हो रही बात? फिर देखिए दूसरी सेकेंड लेंथ स्ट्रिंग डबल जीरो, क्या 00 एक्सेप्ट होगा? चेक कर लेते हैं। डेल ऑफ Q0 ऑफ 00, तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ डेल ऑफ Q0 ऑफ 0 कॉमा 0, ठीक है। डेल ऑफ, ये डेल ऑफ Q0 ऑफ 0 क्या हो गया? Q0. Q0. वेरी गुड, Q0. Q0 ऑफ 0 हो गया, ये बचा हुआ 0। अब डेल ऑफ Q0 ऑफ 0 क्या हो गया? Q0. Q0 फाइनल स्टेट है। Yes, sir. तो यानी Yes. कि स्ट्रिंग कौन सी भी एक्सेप्ट कर गई? 0 1 भी एक्सेप्ट कर गई। कौन सी एक्सेप्ट कर गई? 0 0 भी एक्सेप्ट कर गई। अब चेक करिए 0 1। अब देखिए थोड़ा फास्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं 0 1 का मतलब कोई भी स्ट्रिंग हमारी इस फॉर्म की होगी 0 1, तो हमने अप्लाई करेंगे Q0 से, तो पहले Q0 ऑफ 0 आएगा, क्या आ जाएगा? Q0. Q0, फिर Q0 पे 1 अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? Q1. Q1 एक्सेप्ट हो गई, Q1 फर्स्ट Yes, sir. ठीक है, तो 0 1 भी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। 1 1 Q0 पे 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Q1. Q1 पे 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Q1. Q1 1 एक्सेप्ट हो गई। अब 1 0 अप्लाई करके देखते हैं, Q0 पे 1 अप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? Q1. Q1 Q1 पे 0 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Q2. Q2 कैसी है? Initial. नहीं, अगर फाइनल नहीं है तो नॉन फाइनल होगा ना। Yes, sir. नॉन फाइनल मतलब नॉन एक्सेप्टिंग, एक तरीके से वही हो गया ना। तो क्या Q2 पे जो स्ट्रिंग आ रही है वो एक्सेप्ट होगी? No, sir. No, sir. यानी कि 0 1 सॉरी 1 0 एक्सेप्ट होगी? No, sir. No, sir. नहीं, यानी कि 1 0 जो स्ट्रिंग थी हमारी इसमें वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। क्लियर? सो 1 0 स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, ये नहीं एक्सेप्ट हुई। यानी कि अब आप देखें 1 0 के बाद में यहां तक 1 0 में पहुंच जाएंगे, इस स्टेट पे Q2 पे क्या स्ट्रिंग लेके पहुंच सकते हैं हम इनिशियल से? इस इनिशियल स्टेट से यहां तक कितनी स्ट्रिंग आ रही है? मिनिमम 1 0, और 1 0 के बाद चाहे 0 आए या 1 आए, अगर 0 आता है तो ये Q2 पे ही रहेंगे, 1 आता तो भी हम देखिए 1 0 के बाद 1 आता तो भी Q2 पर रहते, या कोई और स्ट्रिंग आती तो भी यहीं रहते, 1 0 आता तो भी रहते। यानी कि वो सारी स्ट्रिंग जो जिसमें 1 0 आपका आ रहा है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा सभी लोग, क्या हो रहा है कि Q0 से चलते हुए ऐसे से चलते गए और यहां जब पहुंचे तो 1 और 0 के बाद ही हम यहां पहुंच पाएंगे, और उसके बाद 0 1 की कोई भी पैटर्न आ रहा है, चाहे 0 है चाहे 1 है 1 है 0, इसी स्टेट पे ही बने रहेंगे, तो यानी कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही सभी को? कोई डाउट हो पूछो पहले, कोई डाउट हो, क्लियर ना हो रहा हो कॉन्सेप्ट पूछिए। Clear है sir. क्लियर है? बढ़े आगे? Yes, sir. ठीक है, अब बात आती है यहां पर कि यानी कि अगर आपने यहां पे देखा जब भी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, जो ये हमारा लैंग्वेज का सेट बन रहा है इसमें वो सारी की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं एक्सेप्ट द जिसके अंदर 1 0 आ रहा है। 1 0 के अलावा वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं। धीरे धीरे देखिए, so we can define this set as L of M is the set of all string W such that W belongs to
W belongs to 0 1 star and W doesn't क्या नहीं रखता है, contain सब स्ट्रिंग, कौन सी सब स्ट्रिंग नहीं आ रही है बताओ बच्चों? 1 0 10 doesn't contain substring 10. So this is the language that is accepted by this finite automata. Clear हो रही है बात सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Right? सबको दिखाई दे रहा है? पढ़ा करें? Yes, sir. Right. So previous class we have discussed only this point कि how we can construct a finite automata so that the language is accepted by or recognized by the automata, right? So here in the deterministic finite automata you have seen any language accepted by this finite automata based on if it is started from the initial state and terminated at the final state. Now हमने कुछ ये एक्सरसाइज आप लोगों को करने के लिए दी थी, आप में से किसी ने कुछ कोशिश की? Note down first of all these exercise over the DFA. कर ली सभी ने नोट? No, sir. कर लीजिए. स्नैपशॉट ले लीजिए, बाद में भी नोट करते रहिए, मैं वन ऑफ द एग्जांपल लेके कंस्ट्रक्ट करता हूं, राइट? Okay. जस्ट ए मिनट. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द DFA for the set of all string over AB. DFA for the set of all string over A and B. अब बताइए मुझे, आपको ये लैंग्वेज दी गई है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए DFA जो कि हर स्ट्रिंग ए बी से बनने वाली हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे. अब बताइए W क्या क्या होंगी, स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती हैं लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या क्या होंगी? ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी. फर्स्ट थिंग एप्सिलॉन ए बी BA, EB, or 3 length, 4 length, 5 length, up to infinite length string. That means all the string should be accepted by the finite automata. So, as per the definition of the DFA, DFA is represented by Q, sigma, del, Q naught and F. Q, sigma, del, Q naught and F. Q आपको सबको पता है क्या होता है? Set of finite set of state.
सभी को पता है सिग्मा क्या है? Yes, sir. फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, इनपुट अल्फाबेट और इनपुट सिंबल्स। तो ये तो आपको सबको पता ही है कि अभी क्या हमें दिया है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या दिया है? ए और बी। तो यहां पर ए और बी पता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता सेट ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी। पता नहीं पता, यही तो बनाना है। डेल अभी नहीं पता, ट्रांजिशन फंक्शन ही तो डीएफए को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन टेबल ही डीएफए को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन डायग्राम ही डीएफए को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी नहीं पता। Q0 क्या है? Q0 क्या है? इनिशियल स्टेट, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल क्यू। यानी कि इस सेट की वन ऑफ द स्टेट हमें पता पड़ गई, वो क्या है? Q0। यहां तक क्लियर हो रही बात? ये बात सबको Yes, समझ sir. में आ रही कि इनिशियल स्टेट तो होनी है, वो इनिशियल स्टेट हमने ले ली। अब क्या नहीं है और हमें पता? F सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब देखिए बहुत ही माइन्यूट से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिहाफ पर हम ये फाइनाइट ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यही इसीलिए मैं कह रहा हूं क्लासेस मत मिस करना। चलिए अब बात कर रहे थे, हमने कहा कि आपके पास इनिशियल स्टेट मिल गई है। इनिशियल स्टेट क्या हो गई? Q0। इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने का सबको तरीका पता हो गया कि कोई भी स्टेट जिसमें एक इनवर्ड एरो आ रहा है वो स्टेट हमारी क्या होगी? इनिशियल स्टेट। अभी आपने एनालाइज किया इस लैंग्वेज के बिहाफ पर, जो लैंग्वेज ये दी गई है उसमें स्ट्रिंग क्या क्या होंगी, ये आपकी एनालिसिस पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे एनालाइज किया है जो लैंग्वेज है। यहां पर मैंने बताया कि आपने एनालाइज किया और आपने पता किया कि एप्सिलॉन भी स्ट्रिंग होगी, ए भी होगी, बी भी होगी, 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए हो सकता है, 4 टाइम्स ए हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सभी के, ठीक है। और आपको अभी तक हमने आपको ट्रांजिशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी बता रखी हैं। आपको अगर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, बताइए एप्सिलॉन, तो बताइए फाइनल स्टेट कौन सी होगी? Q0. That's great. Q0 will be your final state. कौन थे भाई? नाम बता दो मुझे। Raise your hand. Divya. देव्य। और Monisha. मनीषा। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। समझ में आनी चीजें, इसका मतलब क्लियर। जैसे ही ये एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना था तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट करने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन, अगर हम देखें ये मशीन, अगर ये भी एक कंप्लीट मशीन है जो कि केवल और केवल एप्सिलॉन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अब बात आती है ए को एक्सेप्ट करना है या ए की कोई भी कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करना है। ये सारी स्ट्रिंग इस सेट में बिलोंग करेंगी कि नहीं करेंगी? 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, 6 टाइम ए, अप टू द how many times? Infinite times. Whenever we call infinite times, what should be there? क्या होना चाहिए? एक लूप होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये लूप काउंट करता रहेगा कब तक? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, अप टू द इनफाइनाइट टाइम। अब मैं चाह रहा हूं कि एक ए एक्सेप्ट करे, तो यानी इनिशियल स्टेट से चल के फाइनल स्टेट के बीच में एक ट्रांजिशन ऐसा होना चाहिए जो कि ए को एक्सेप्ट कर रहा हो। इसमें इनिशियल स्टेट क्या आ गई? Q0. फाइनल स्टेट क्या है? Q0. तो यानी कि ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? Q0 से चल के Q0 बाई ए। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या ये बाकी, अगर हम ये ट्रांजिशन बना रहे हैं तो क्या बाकी स्ट्रिंग को भी ये ले पा रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है? अब देखिए 2 टाइम्स Q0 पे ए को देखें, Q0 से
देखिए Q0 से A लिया तो ये Q0 पे आ गया, Q0 से फिर से A लिया तो ये B एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर देखिए इसके लिए Q0 पे A आया तो Q0 पे आए, A आया Q0 पे आए, फिर A आया Q0, ये भी एक्सेप्ट हो रही। यानी कि अगर ये केस सबके लिए देखें तो भी दिस ट्रांजिशन इज ओके फॉर मी। ये बात सबको समझ में आ रही? सो दिस इज कॉल्ड ए सेल्फ लूप, right? So that it will count number of time, either 0, 1, 2 up to infinite times. ये बात समझ में आ रही सभी को? Yes. Yes, sir. ग्रेट। अगर ये समझ में आ रहा, अब सेम बी का कॉम्बिनेशन लिखें। अगर बी होता, इसकी जगह ए की जगह बी से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही होती तो बी बी होती, बी 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 होती, ट्रिपल बी 4 टाइम्स बी होता, 5 टाइम्स बी होता, 6 टाइम बी होता, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स बी होता। तो भी क्या होता? तो क्या होता? एक बी का सेल्फ लूप लग जाता। अब देखिए ये बी से भी बन गई। अब क्या ए और बी के कोई भी कॉम्बिनेशन होता, चाहे ए के बाद बी आए या बी के बाद ए आए या ए बी बी आए या बी बी ए आए, तो क्या इन दो लूप से काम चल जाएगा? कोई नई ट्रांजिशन स्टेट तो आया नहीं। अब देखिए Q0 से अगर हम इस बात को लेके चलते, ए बी आता तो Q0 से ए लेके कहां गए? Q0 पे। Q0 से बी लेके कहां जा रहा है? Q0. तो ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही। सेम केस यहां देखिए, Q0 से B लेके कहां जा रहे हैं? Q0 पे। Q0 पे A लेके कहां जा रहे हैं? Q0 पे। तो भी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही, तो भी एक्सेप्ट हो रही। Q0 पे A आया तो Q0 पे, Q0 पे B आया तो Q0 पे, Q0 पे B आया तो Q0 पे। That means for all the combination, this automata is okay for me, right? So you can also define this automata like Q0 is a one of the state and this is a final state, and also there is a transition. We can combine these both transition A comma B, right? So these are equivalent basically to each other. ठीक है? So this is a finite automata that represent the set of all string over A and B. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? एक और क्वेश्चन इसी के भी आप पे, बाकी आप क्वेश्चन करते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, अगर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ तो बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। अब है, आप लोग बनाइए डीएफए, कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर सेट ऑफ all string, set of all string over AB starts with A. Construct DFA for set of all string over AB starts with A. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो यानी कि इसमें लैंग्वेज क्या क्या होंगी, लैंग्वेज की स्ट्रिंग क्या क्या होंगी बताइए। A होगा, A होगा, A B होगा, A AB. होगा, ठीक है, AB. A B भी होगी, A. वेरी गुड। और AA. A A भी होगा, वेरी गुड। और बताइए। AB. A B A B होगी, वेरी गुड। A B A B भी होगा, वेरी गुड। A B भी होगी, होगी नहीं होगी? और ट्रिपल टाइम्स A भी होगा। ऐसे ही मतलब A पहले आएगा, उसके बाद आपकी कोई भी A और B का कॉम्बिनेशन आ सकता है।
स्टार का मतलब ऑल द कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पे आइदर ए और बी से बनने वाली वो सारी स्ट्रिंग्स, उसके बाद कोई भी ए और बी आएगा, ठीक है, एक तरीके से, यानी कि ऑल दी स्ट्रिंग। तो हम बनाते हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पहले मैं एक क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर आपके पास जो ये सेट बना, तो यहाँ पे जो मशीन जो बनी थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे केवल Q0 इज ओनली स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड एज पर दिस डायग्राम, ठीक है, डेल इज डिफाइंड एज पर डायग्राम, और टेबल के डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, Q0 इज योर इनिशियल स्टेट, ठीक है, इसको इन्वर्ट एरो दे देंगे और उसी को हम स्टार कर दें या सर्किल कर दें, तो यही हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट। और जो नेक्स्ट स्टेट बनेंगी वो ए और बी के लिए थी ना, ए और बी के लिए, तो Q0 पे ए अप्लाई करेंगे तो Q0 पे बी अप्लाई किया था Q0, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांजिशन टेबल बन गया था इसका, ठीक है, ये डायग्राम हो गया था, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन अगर करना है तो Q0 ऑफ ए इक्वल टू Q0 और डेल ऑफ Q0 ऑफ बी इक्वल टू Q0। तो ये फंक्शंस हो गए थे, तीन तरीके से मैंने बताया था आपको, फंक्शन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू और टेबल के थ्रू, ठीक। तो ये था। चलिए अब मैं आता हूं इसी पे। तो यहां पर देखिए, ये हमारी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आई जो कि डिफाइन कर रही हैं ठीक है, ये है लैंग्वेज एल दैट इज ए बी एंड सो ऑन, राइट। सो हम फिर से वही करेंगे, एम इक्वल टू हमारे पास होगा क्यू सिग्मा डेल क्यू नॉट एंड एफ, ठीक है। क्यू नहीं पता, लेकिन एक तो स्टेट हमें पता ही है, वो जो है Q0, सिग्मा हमें पता है वो क्या है, ए बी। अब डायग्राम स्टार्ट कर देते हैं बनाना सीधा ही सीधा। तो इनिशियल स्टेट हमारी Q0 हो गई, राइट। हेलो, यस सर। सभी लोग हैं ना प्रेजेंट? यहां तक आ गए? हमने फास्ट थोड़ा सा कर दिया कि एक इनिशियल स्टेट हमारी होगी Q0। अब क्या चाहिए, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, उसको मिनिमम क्या चाहिए, ए, यानी कि Q0 से QF तक हमें कम से कम ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसका नाम क्या है, ए। अब क्या Q0 तो हमारी इनिशियल फाइनल स्टेट बन नहीं सकती क्योंकि एप्सिलॉन नहीं है, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन होता तो हम इसको बना लेते। अब यहां पे एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है, इसमें तो एप्सिलॉन डजंट बिलोंग्स टू एल, ठीक है। तो हमारा ये यहां पे इसको हम फाइनल स्टेट नहीं बना सकते, इसलिए एक नई स्टेट और बना ली। क्या बना ली, Q1। और Q0 से Q1 हम जब पहुंचे तो हमारा ए ट्रांजिशन हो गया। Q0 से Q1 हमारा किसके थ्रू पहुंचेंगे, ए इनपुट अप्लाई, दैट मींस अप्लाइंग ए ओवर Q0 वी आर रीचिंग एट दिस, एंड दिस स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, बताइए बेटा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। यस सर। तो Q1 किस टाइप का स्टेट बनेगा, फाइनल स्टेट। वेरी गुड, ये फाइनल स्टेट बन गया, ठीक है। ये क्लियर हो गई, डबल सर्किल कर दिया। अभी हमने इस पे कितना इनपुट अप्लाई किया, एक। हमारा जो फंक्शन कहता है डेल, वो कहता है Q क्रॉस सिग्मा टू Q। इसका मतलब होता है अप्लाइंग ईच इनपुट ओवर द स्टेट, अप्लाइंग ईच इनपुट ऑन द स्टेट there must be one transition out of that state। हमारे पास सिग्मा है ए एंड बी, हमारी स्टेट आती जा रही है, ठीक है। अभी हमारे पास दो स्टेट आ गई है, एक Q0 आ गई, एक Q1। Q0 पे तो हमने ए अप्लाई कर लिया, Q0 पे क्या नहीं अप्लाई किया है, कौन सा इनपुट नहीं अप्लाई किया है, बी। बी। कोई भी, जैसे एक मशीन बना रहे हैं ये, ठीक है, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग अप्लाई करे तो स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट करेगी, जब वो WLM में होगी। और स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट नहीं करेगी,
यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी ये, कब एक्सेप्ट नहीं करेगी? कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट तब नहीं करेगी वो जब एल ऑफ एम में ना हो। अब कोई भी इनपुट, कोई भी आया, जैसे क्रेडिट कार्ड का आप जब जाते हो उसमें एटीएम मशीन में, तो आपका जो पासवर्ड होता है, जैसे आपने लिखा 1111, ठीक है, तो यही एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपने किसी ने 1101 डाल दिया तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी आए तो, क्योंकि ये इस मशीन के लिए डिजाइन ही नहीं है। तो हमें ऐसे ही करना है कि हमें केवल और केवल इसमें वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जो हमारा लैंग्वेज कह रहा है। लैंग्वेज यहां कह रहा है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी स्टार्ट विद ए, तो ए से जब स्टार्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर बी किसी ने इनपुट डाल दिया, यहां पे जैसे 1 की जगह उसने 0 डाल दिया होता पहला, तो क्या होता? अगर इसने पहला 0 डाल दिया होता तो क्या होता? एटीएम कार्ड एक्सेप्ट होता है या नहीं होता? नॉट एक्सेप्टेड। तो यानी कि यहां पर जब हमने बी अप्लाई कर दिया इनिशियल स्टेट पे, अगर बी किसी ने अप्लाई किया, कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो क्या होना चाहिए? एक ऐसी स्टेट पे चला जाए जहां पे वो एक्सेप्ट ना करे, लेट इट इज ए Q2 स्टेट। और इसके बाद कोई भी 0 और ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आए, जैसे अभी हमने पहले बताया था कि 1 0 सब स्ट्रिंग के बाद में 0 1 की कोई भी स्ट्रिंग आए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्यों? क्योंकि वहां एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रही थी। यानी कि इस स्ट्रिंग के बाद कोई भी ए और बी की स्ट्रिंग आए, कोई भी स्ट्रिंग की बात करें, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी क्या होगा? एक सेल्फ लूप होगा। जैसे यहां पे हमने ये बनाया है कि सेल्फ लूप, दैट मींस द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए ए कॉमा बी की कोई भी स्ट्रिंग आए वो एक्सेप्ट नहीं हो। बट यहां पर जब हमने ए लिया और यहां पहुंचे एक्सेप्ट हुआ, यानी कि इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग आए तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये हो गया ए एंड बी। So see here, this is a diagram that will represent the set of all string over AB start with A. क्लियर हो रहा है ये सभी को? इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। इसका आप लोग टेबल और फंक्शन बना के कल मुझे दिखाएंगे। और जो मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नोट तो कर ही लिए होंगे आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या हो रहा है ये? ये वाले क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और इनको आप सॉल्व करके कल मुझे दिखाएंगे और हम बात भी करेंगे, डिस्कस करेंगे दोबारा से, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कभी भी, मेरे फोन नंबर सभी के पास है, ईमेल आईडी है, ठीक है, ग्रुप में कभी भी कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। और अपने साथियों से जरूर कहिए कि आप लोग क्लास अटेंड करें।